तो सबसे पहले ये देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नो नो नो, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चेंज करना है। ओके, इंटीग्रेशन। यस, वेरी गुड। तो टेन एक्स प्लस सी, राइट। ओके, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 15 6 4 एक्स, राइट। राइट। तो 15 इज कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको मैं बाहर कर सकता हूँ। अगर ये सेक स्क्वायर एक्स होगा तब तो 10 एक्स लिख देते हैं, नो नो प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम यहाँ क्या है? स्क्वायर के पावर 4 है ना। तो इसको ट्राई करो कि ऐसा बनाए, तो ऐसा बनाने के लिए क्या करोगे? वेरी गुड। अब वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, tan और सिक में क्या रिलेशन है? तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हें सेक दिख रहा है तो एक सेक को 10 बनाने की कोशिश करो, राइट। तो यस, अंडरस्टूड। ओके, अब tan एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? वेरी गुड, इस पूरे को यू मान सकते हैं, राइट। सो यहाँ लिखोगे यू, ऑलवेज कंसिडर यू 1 प्लस, अच्छा पूरे को मानने की जरूरत नहीं है, 10 एक्स को मान लेते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई डी यू। वन इंटीग्रेशन इज यू एंड यू स्क्वायर इज, राइट, एंड ऑलवेज एड वन कांस्टेंट, 10 एक्स, टेन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस, अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो व्हाट यू सब्स्टिट्यूटेड? यू इज इक्वल टू 10 एक्स, अंडरस्टूड। No need to write. I will send that recording. Understood, na? Yes. Now see, second question is 10 tan cube x. 10 tan cube x. Already said. Okay. So whatever you see constant, take it outside. Understood? तो देखो, इंटीग्रेशन में अगर tan का कुछ भी पावर दिखे, हमेशा ट्राई करो कि उसको सेक के फॉर्म में चेंज करें। तो यू कैन राइट व्हाट, 10 x, राइट। 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? sec x, right? Sec square x, right? Because you can change this, not this. When you open the bracket, you will get two integral. Yes, right? And okay. Now see, this is u, understood? Whenever a function is multiplied with its derivative, always write what? Function whole square divided by 2.
Okay, this is the formula. If any function is multiplied with its derivation, suppose this is the function. What is the derivation of this? Sec square x. Then you can write direct. You can use directly this formula. If you can't remember, then do one thing. Let's suppose this is u. Then du will be sec square x dx. Now you can see sec square dx is replaced by du. Ultimately, you will get same thing, right? Integration of u is u square over 2, and where u is understood. And this part, integration of tan x is no. Derivation is secant square x. Log sec x. Okay, this is direct formula. Yes. Integration, not derivation. Derivation will be sec square x. Understood? So finally you will get log sec x and in last add one constant. Understood? I show you, don't worry. You understood this? Okay, I show you 1 minute. Okay, log sec x. Yes. मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ कैसे हुआ है. ओके, देखो. लॉग सॉरी टेन एक्स का लॉग सेक एक्स क्यों होगा? देखो. हम्म, फिर, पहले था, देखो इसको तुम cos x लिख सकते हो, राइट? यस. तो डी यू माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा. टेक माइनस टू द लेफ्ट साइड, राइट? सो यू विल गेट व्हाट? एक्स साइन एक्स डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई माइनस डी यू अपॉन यू, राइट? And integration of 1 upon x, log x, log u. Minus means what? Log u raised to minus 1. Or log u raised to minus n is 1 upon u. Where u is 1 upon cos, right? Sec x. And at last, add c. Understood? Yes. See, third question. 6 tan 5x sec square x dx, right? What will you consider u? यू उसी को मानना जिसका डेरिवेशन प्रेजेंट हो. यस. लेट कंसीडर u इज इक्वल टू, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, नो इशू. यू कैन टेक y.
Okay, because this is dummy variable. So dy will be understood. You can see this is replaced by what? Sorry. Y raised to 5 dy, right? 6 y raised to 5 is what? Integration, right? And what is y? Yes. This is final integration. Yes. Understood? Yes. Hmm. So थर्ड हो गया. See fourth one. What will it consider you? Same 10x. But here problem is what? Not only say secant raised to 7x is there, right? So see, secant uh, sec square x sec sec again see right here sec 6x sec x, right? Otherwise you can write in this way, right? Yes. Why I am writing like this? So that again you can break, no, so that you can again break this into 1 plus tan square x, right? So you can write what? 1 plus sec square x. Okay. So break this and this into tan form. And don't break this. Why? Because when you put u is equal to tan x, तो ये replace हो जाएगा dy से, right? तो 5. हाँ. See what is relation between tan and sec x, right? तो हमेशा ट्राई करो कि tan sec को ब्रेक करे tan के फॉर्म में. और एक सेक स्क्वायर तुम्हें दिखे कहीं ना कहीं, राइट? यस. और कहीं भी tan रहेगा उसको तुम t मान लेना, राइट? यस. अभी देखो ये हाँ. नहीं, अभी मैंने इसको ब्रेक किया है. अभी भी मेरे पास ये है ना. यस. तो अच्छा, इसको पावर 4 लिख सकता हूँ ना. देखो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस पावर 7 है ना. चलो तो इसको मैं लिख लेता हूँ. 6. अगर तुम 6 लिखोगे तो एक बचेगा, राइट? तो मैं पावर 4 लिख लेता हूँ और 3 लिख लेता हूँ, राइट?
तो पावर 4 क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। कैन यू राइट? अंडरस्टूड? समझ गए ना? यस। देखो 4 को इसलिए किया क्योंकि 2 बार करने से अच्छा है कि मैं इसको एक बार में ही कर दूं। हाँ। ओके। तो अगर वर्क नहीं होगा तो दूसरा रास्ता देखेंगे। 5 10 x पावर रिड्यूसिंग। अच्छा देखो 7, एक बार मैं फिर से सोचता हूँ। देखो तुमको सोचना कैसे है। यहाँ 5 10 x है ना। प्रॉब्लम क्या है? सेक का पावर 7 x, राइट? तो क्या मैं इसको सेक का पावर 6 x इंटू सेक एक्स लिख सकता हूँ? ओके। कहीं ना कहीं से यहाँ तुम्हें 10 मिलेगा ना। तो यू कैन आल्सो राइट व्हाट सेक स्क्वायर एक्स का पावर 3। अंडरस्टूड? यस। अंडरस्टूड ना? हाँ ये तो सॉल्व हो गया। देखो ये तो यही सॉल्व हो गया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स? वे बस काम हो गया। तो इसको ऐसे अरेंज कर लो। 5 इज कांस्टेंट, सेक एक्स इंटू 10 x होता है ना। नहीं मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। यहाँ तक समझ गया ना अभी तक? अरे सेक का पावर 7 को मैंने 6 और 1 लिखा है। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मैंने आगे शिफ्ट किया, इसको इधर लिख लिया। ऐसा क्यों किया हूँ? हाँ, लेट यू इज इक्वल टू सेक एक्स, तो यू बिकम, दैट्स व्हाई आई रीअरेंज दिस इनटू टुगेदर, राइट? तो उसके जगह क्या आ गया? ये क्या है? यू का पावर 6 है ना, और यहाँ डी यू आ गया। दैट्स इट। राइट ना? वेयर यू इज अंडरस्टूड ना? हाँ फिर से तुम ट्राई करो, मैं बताता हूँ। Okay.
right na? Future maintenance of construction, power infrastructure, and Now see this question. Can you try by yourself? I will tell you. Yes. Then I will tell you. future maintenance expenses. Alignment should be selected to minimize land acquisitions, construction, and jet maintenance. Affecting alignment of volume. तो जब प्रॉब्लम इवन होता है तो सॉरी, जब सेक का पावर इवन होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो टी को तुम 10 यू मान सकते हो. The load elements connect important doubts and delivers. Understood? Yes. To solve and then the particles power. इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Traffic to particles check करना पड़ेगा. हाँ, तो उसको क्या ऑफ देगा? The main areas the alignment should be as straight and level as possible to reduce carbon distance and percentage of the topography of the area. If the area is free, so the alignment should be straight. Alignment should be straight. Road बनाएगा क्या करेगा? एकदम straight करेगा, बराबर ना? And level as possible to reduce. क्यों? Travel distance reduce हो जाएगा और plus again, ये प्लेन एरिया है तो तू रोड ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट यहाँ से रोड बनाएंगे या अगर प्लेन रोड एरिया है तो ऐसा अगर स्ट्रेट बनेगा तो उससे क्या होगा? बड़ा ट्रैवल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो गया ऐसा बोल रहे हो? ओके, आई चेक. देखो 10 का पावर 5. नो प्रॉब्लम, वो तो देखो जब भी इवन पावर रहता है हमेशा ट्राई करना 10x को यू मान लें, बट यहाँ पावर इवन है तो इसको बस इतना ही तुमको रिप्लेस करना है, राइट? इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सबको 10 के फॉर्म में ट्राई करने की कोशिश करो, राइट ना? तो sec square x becomes right. Now consider u is equal to 10x. ये स्टेप दिखाना जरूरी एग्जाम में. विदाउट दिस स्टेप सॉल्यूशन इज इनकम्प्लीट. और ऐसा मत लिखा करा करो du by dx. अंडरस्टूड? ये लिखने का मेथड होता है. Noted? So put everywhere t wherever you get 10x. Oh, sorry, not t, u, because variable you considered u, right? D. Understood? Now you can integrate. How? It is integrated into two parts. U raised to 7d, right? Yes, 5 power is added, right? U raised to 8 upon 8 plus c. Now put the value of u. कंस्ट्रक्शन एंड फीचर वेरिएबल्स के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कौन है स्ट्रेट मान Right. This is your final answer. Yeah. Next question. Yes, yes. Done this part? Okay. Now see this question. Can you try this? Then I will tell you.
Here again, sec power is even, then you can consider t directly. Right there somewhere, if power of sec x is even, then consider t is equal to u. Okay. Yes. Try this question. Yes. I will tell you by two method how to solve this. First you, yes, first you solve. Designs between planes on where the road passes. On where the road passes. Road passes. To play plane number plane area rolling. Mountainous or keep carrying. Keep SPE. मास्टर्स में कौन है? हाँ, मैं करा दूंगा मैं. समझा? मतलब कौन सा इफेक्ट करता है इवेंट पे कि देखो वो मतलब रोड कहाँ से जा रहा है वो रोड पासिंग से प्लेन सर्विस से क्या रूलिंग या मोनोटोनियस है या स्विफ्ट ठीक है सेकंड हमने स्टेडियम पूरा 15 मिला है ना डीवी लेवल ऑफ द एरिया ना टाइप ऑफ द इंपॉर्टेंस राइट, ये मिला ना. टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड ऑफ ओके. हम भी सब टाइप तो पाई बाई 6 means what? Pi means 180, 180 by 6 means 30 degree. Tan 30 degree is मतलब रोड का टाइप नहीं मैटर करता है कौन सा शुरुआत की था तो वो क्यों लिखना so 1 over root 3, right? नेशनल हाईवे 1 over root 3 is to 4, right? First put tan और वही pi by 6 लोकल फूड कैसे रहेगा वो छोटे रहेंगे और and minus tan, sorry, tan कम है minus pi by 6, right? नेशनल हाईवे इक्वल्स हायर डिजाइन Okay. See, tan minus theta टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस is always minus tan theta. Why? Because sin minus theta is minus sin theta. And cos minus theta is positive cos theta. Remember these three identities. Okay. Understood? These are formula which you have to learn. Yes. Now see. Okay, see. 6 by 4 means 3 over 2. Tan raised, tan pi by 6 means what? Tan 30 degree. Tan 30 degree is what? Yes. Tan minus means what? Understood? 1 over 9 minus 1 over 9, which is equal to 0. Understood? Yes. Yes. No. Correct. Take your answer. Your solution. रोड क्या पहला क्या था एरिया ऑफ एरिया था
मतलब वो एरिया कैसा है तो उसको वो वो फ्लैट ना जैसा ऊंचा नीचा रहेगा, लाइक जो फुल स्किप टेरेन रहेगा, मतलब एक जो ऐसा डीप स्लोप। हेलो हेलो, अब यस 11 से 1 सही। राहुल प्रवीण कुमार का है, राहुल पेन 45 ले रहे हैं। करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन देख के तुम आंसर बता सकते हो विदाउट सॉल्व। Carrying of the area can चलो vary speed. अब तुमने पूछा है कैसे, तो बताता हूँ मैं कैसे। So both passes through the plane. यस, body, and बिकॉज also जानना जरूरी है। समटाइम कभी कभी मान लो तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो बहुत काम आ जाता है। हाँ, type अगर कभी भी लिमिट -a से +a है, राइट, तो उसका वैल्यू हो जाता है 0 जब फंक्शन क्या हो, उसका then it is also ऑड हो, so fast वो flow जरा fast हो। राइट। हाँ, and ये जो लोगों को रहेगा और ये हो जाएगा 0 से 2a no जब फंक्शन इवन हो। 50 को 60 क्या अब तुम बोलो सर ऑड इवन क्या होता है, राइट ना। ट्रैफिक वॉल्यूम एंड कंपोनेंट। जैसे मैं कैसे पहचान गया कि ये ऑड फंक्शन है और इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब राइट। ट्रैफिक तो ध्यान से देखना, कैरी करता याद रखना साइन होता है ऑड, है। कॉस होता है, साइन और टेन होता है ऑड, समझ गए। तो है एक लेन पर मतलब ये ऑड फंक्शन माना जाता है। उसको कोई अपनी वॉल्यूम कितना डाल रहा है, तो उसको इससे उसको उतना पावर में नहीं, इनको ऑड ही समझो। ट्रैफिक ज्यादा तो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है ज्यादा ऑड का मतलब तुमको ये बताना पड़ेगा, अगर कोई फंक्शन है, सेम एक्स को रिप्लेस करो विथ -x, अगर वो सेम सेम आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ गए, जैसे ये देखो, एक्स के जगह -x रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो ये इवन फंक्शन है। अंडरस्टूड। जैसे कॉस ले लो, कॉस के अंदर -x रखो, कॉस -x, तो ये को पॉजिटिव होता है ना, तो ये इवन होता है। अंडरस्टूड। तो कॉस इवन होता है और सेक भी इवन होता है। अंडरस्टूड। ओके। तो अभी इवन फंक्शन समझ गए ना। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन नेगेटिव एफ माइनस माइनस में आ जाए, जैसे ये देखो एक्स का क्यूब, एक्स के -x रखो, तो तुमको क्या मिल रहा है, -x क्यूब मिल रहा है ना। तो फंक्शन तो वही मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, राइट। हाँ, फंक्शन वही मिले विथ नेगेटिव साइन तो ऑड हो जाए, और फंक्शन वही मिले सेम सेम चाहे जितनी बार नेगेटिव रखो, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अंडरस्टूड। यस। अब याद रखना ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन। इवन इंटू ऑड या ऑड इंटू इवन हमेशा क्या रहेगा, ऑड। और इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन होगा। समझ गए। अब जैसे देखो ऑड में क्या क्या रहेगा, साइन भी रहेगा, टेन भी रहेगा, कॉसेक और कॉट, समझ गए ना। और ये सब भी ऑड है, x³ x⁵ x, समझ गए ना। अब मैंने कैसे पता किया कि ये इसका वैल्यू 0 होगा, ये -π/6 है, +π/6 है ना। अच्छा बाहर क्या था, tan³ tan³ x, सेक का पावर क्या था, स्क्वायर x ना। अब देखो ये ऑड ये इवन होता है ना,
और ये ऑड होता है ना, तो ऑड इंटू इवन क्या होगा? ऑड होगा ना, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? ऑड। और मैंने बताया था अगर माइनस ए से ए कोई और फंक्शन है तो उसका वैल्यू क्या होता है? अंडरस्टूड ना? यस। थोड़ा सा हार्ड है पर हाँ देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बट कभी कभी क्या होगा, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ये जब तुमको ये पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल सिखा रहे हैं क्या? आगे पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी इसका, कभी कैसे यूज करते हैं इंटीग्रल का। हाँ आएगा। ओके। देखो तुम्हारा सिलेबस थोड़ा अलग है, यहाँ का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। ठीक है। अभी ये सब डिप्लोमा वालों को सिखाया जाता है, तो तुम्हारे में तो बहुत इजी इजी है, ये सब चीज़ पहले सिखाया जाता है। हाँ, तो टू वाला सबसे हार्ड होता है। अब इसको करना हो तो कैसे करेंगे? इधर पूरा इंटीग्रेशन रहता है। कैन यू राइट इन दिस वे? यस। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? राइट ना? ये तो पहला क्वेश्चन जैसा हो गया। अब तो कर सकते हो ना? सेकेंड को नहीं, पहले वाले में तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, राइट? हम्म। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग सिक 12x अपॉन 12। इसका क्या हो जाएगा? इसको तुमने टी मान लिया ना, तो यहाँ क्या आएगा? डी टी। नहीं, ध्यान से देखना है। तो डी टी क्या हो जाएगा? इंटू 12 भी रहेगा ना? हाँ, तो डी टी बाई 12 हो जाएगा, राइट? तो डी टी बाई 12 गाड़ी घेऊन जाते ते ओबी सुद्धा असते 1/12 टी स्क्वायर का क्या होगा? सॉरी, टी का ये हो जाएगा ना, प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। समझना टोटल आएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारा हो गया प्रॉपर ऑब्जर्व यू पे इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल फोर्स राइट। after the अंडरस्टूड। beam of vehicles provide safety and comfort to the road users and reduce wear and tear of tires of and fuel okay ये सबसे बेस्ट आएगा हमको एक लोग मिनट में हम दोनों की टायर लाते हैं पर्सन समझना पहले समझने में जरा सुना समझना लगा भाई जना सुपर इलेक्शन मतलब क्या है पूरा रोड पर एक साइड से ऐसा रहता है क्रॉस करता क्या? है क्या नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओके, क्या है आंसर? समझा defined chamber and entry four types of the मैंने कैम्बर था हाँ eight types of कैम्बर मतलब यही क्वेश्चन करना था ना? parabolic कैम्बर and composite कैम्बर
Define क्या है? अगर इसे transverse slope divide of the Okay. of the center towards to the base of facilitate the drainage of rainwater. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। नहीं समझा? ये देखो नीचे वाला एक ही बचा है ना, वो लास्ट में आते हैं। पहले इंटीग्रल वाला कर ले। देखो इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो हमेशा ट्राई करना कि एक्स यहाँ क्या रखे, क्या होगा? तो पानी ए गिरेगा टेन थीटा तो या ए कॉट थीटा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। पक्का अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो तो क्या नो नो होता है? ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा कुछ भी रख सकते हो, राइट। स्लो provide to the road provide to the road surface from the center towards the center में ऊपर रहेगा राइट ये क्वेश्चन है। स्लो तो बताओ कहाँ तुम्हें वो फॉर्म दे। अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज डिनोमिनेटर में दिखे तभी करना, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। कहाँ मिले? डिनोमिनेटर में, अंडरस्टूड। और स्लो क्या मतलब? देखो प्रॉब्लम होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में रहेगा तो स्प्लिट कर सकता हूँ, क्या मतलब? लेकिन डिनोमिनेटर में रहेगा तो स्प्लिट कर, जैसे तुम अगर ए प्लस बी लिखा है तो तुम इसको ए प्लस बी लिख सकते हो ना, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में क्या तुम इसको ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यस, तो डिनोमिनेटर में रहेगा तभी ये चीज फॉलो करेंगे, ओके। अभी समझे ना। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो न्यूमरेटर के हिसाब से मत जाना, हमेशा डिनोमिनेटर के हिसाब से जाना है। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। आगे प्यारा बोल अभी स्ट्रेट है ये समझा ना? हमेशा जब उनको ऐसा तो हम बोली हाँ यस। यस बस, बस हो गया, तुम्हें बस इतना ही कंसिडर करना था, राइट। अब जो भी चीज कंसिडर किया उसको डिफरेंशिएट कर लो। कैन यू राइट इन दिस वे? तो हाँ, तो यहाँ इसको क्या लिखोगे, राइट। 14 कितना हो जाएगा? 196। 196 बाहर गया तो कितना हो जाएगा? 1 + tan² थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ रिप्लेस कर दो। 11 एक्स स्क्वायर क्या है? और 196 प्लस ये क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड ना, होल स्क्वायर है। और डीएस के यहाँ क्या आ गया? राइट। ये dx इज रिप्लेस्ड बाई, राइट। यस, एवरीथिंग विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो जितने कांस्टेंट को बाहर करो, कांस्टेंट क्या है? 11 है, 14 का स्क्वायर है ना। अच्छा यहाँ 196 का स्क्वायर है और इंटू 14 है, राइट। अच्छा अभी क्या बच गया? tan² थीटा sec² थीटा sec का पावर
वो 4 थीटा डी थीटा अंडरस्टूड। लो सामने वाला जो बात था उसको अब तुरंत कैंसिल मत कर देना, पहले सोचना थोड़ा सा, राइट ना। तो देखो 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 एक पेयर कट गया ना। 14, 14 राइट। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कैन यू राइट डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट ना। अब देखो तुम्हारे पास क्या बच गया, यहां तक समझ गए तो आगे चलें। अब p किसको मानोगे, यू टी कुछ भी मानो, tan थीटा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा dt ना। हाँ तो ये जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर, राइट। अब बस ये पार्ट सॉल्व करेंगे। अरे फिर से वही आ गए, वेट वेट वेट, फिर मतलब क्या है सॉल्व करने में। अच्छा देखो, दो पेयर कैंसिल हो गए यहाँ से ना। अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया ना। राइट। तो लास्ट में क्या बचा 11/14 साइन स्क्वायर थीटा, इज इट। इतना क्लियर है। अब याद रखना अगर इंटीग्रल में साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी आ रहा है तो अपॉन 2 कर देना, राइट। राइट, so here you can write 1 minus cos 2 theta over 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा साइन का अपॉन 2, राइट। थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी, अंडरस्टूड। अच्छा ठीक है, ये तो थीटा के फॉर्म में है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इट बिकम्स व्हाट x/14 tan इनवर्स, you understood this part, replace theta with tan inverse x। हाँ तो फाइनल आंसर विल बी 11/14, थीटा इज व्हाट 1/4 sin 2, थीटा इज व्हाट tan inverse x/14 plus c, understood। Yes। आगे चलें। हाँ ट्राई करो, करो ट्राई। ये शायद 24 का स्क्वायर है। हाँ लेंदी था, नो प्रॉब्लम, ट्राई करो ये।
24 ले लो। हाँ। यस। हम्म। ऊपर डी। हाँ, वेरी गुड। तो नीचे क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, राइट। 3/2। सो व्हेन यू टेक 24 आउटसाइड, तो वो अकेला नहीं आएगा, पावर 3/2 साथ में भी आएगा, राइट। y5। नहीं नहीं, अभी तो मैंने ब्रेक ही नहीं किया ना। अभी तो। हाँ। तो देखो, 2 से 2 कैंसिल। यस। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा, राइट ना। तो 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो आई थिंक ये बचेगा 1/20। 6 पावर क्यों बनेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, राइट। हाँ। हाँ, सेकंड क्यूब बनेगा। ओके। नाउ यू कैन सी, 2 पावर ऊपर कैंसिल हो गया ना। नीचे क्या बचा है? 1/sec इज कोसाइन इंटीग्रेशन इज साइन थीटा प्लस सी, और पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? यस। tan इनवर्स x/24, राइट। अभी तो जरूरत नहीं है, राइट। देखो, अगर तुमको और सिंप्लीफाई करना है, तब तो ट्रायंगल यूज करो। जैसे मान लो ये साइन है, और इसको साइन बनाना रहेगा, तो एक काम करो, तुम ट्रायंगल बनाओ, राइट। यहाँ ले लो थीटा, राइट। तो टेन यहाँ क्या है? x/24 है ना। तो टेन क्या होता है? ये अपॉन 24 ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस यूज करो। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन। हाँ। तो ये साइन थीटा हो गया, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा हटा के तुम ये रख सकते हो। अंडरस्टूड।
तो 576 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस सी। समझ गए ना? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि तुम इसका आंसर टेन के टर्म में मत दो। इसका इसको तुम यहाँ लिख लो इस फॉर्म में, बट एक ट्रायंगल बनाओ। तो यहाँ टेन इनवर्स है, तो एक्स मतलब अपोजिट साइन अपॉन एडजेसेंट साइड। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ये निकाल लो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल गया ना, तो डायरेक्टली यहाँ साइन थीटा का वैल्यू रख दो। तो यू विल गेट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट? यस। हम्म। तो व्हाट विल यू कंसिडर हियर?